Another Thursday evening, another chit chat show, but what I can guarantee you is an evening full of entertainment. So let's start this chit chat show with my mandatory line, which says that this chit chat is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So today on our guest list is someone who started his career as a hotelier but then went on to become an actor. Well, that definitely sounds interesting. So let's invite Kamal Ghimire ji online and get to know more about his life and his journey till now. Okay, so I can see a few people online. Thank you, Krishan, Hani Bullarji, and Kishan Upadhyay for joining us online. I'm waiting for Kamal ji to join us so that we can start this chit chat show. And I hope that he'll be here sometime soon. Okay, so he started his career as a hotelier, and his journey is pretty interesting and pretty filmy also. That's all I can reveal right now. Let's all wait for him to join us so that we can start this show. So I hope he must have got the notification. I think he hasn't, and that what happens with Insta, that Insta gives the notification a little delayed to the guests sometimes if they have not joined my page. Well, I think he is there. Yes, he's there. Okay, hello Jiten ji, how are you? Well, back on the advertisements. बहुत सारे इन्होंने अभी एडवर्टीजमेंट्स किए हैं. जितेन जी, आपका मुझे अमेजोन वाला बहुत पसंद आया, and I hope that you continue to do all such advertisements. I think we have got connected with him. Hello. Yeah. Hi. Can you see and hear me properly? Yes. Yeah, I can hear you. Okay, great. So tell me, आप कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? I think कुछ disturbance आ रहा है. Yeah, I think you need to get the headphone. Sorry, there was a little noise, so I took it out. Okay. Lockdown is going perfect, and वही तैयारियां as an actor, अपने आप को you have to prepare yourself, and वक्त लगता है अपने आप को mature करने में. I'm just a newcomer. मुझे तो ज्यादा 2-2.5 साल ही हुए हैं एक्टिंग फील्ड में आए हुए. Okay. So I'm just preparing myself with language, with diction, with other practices, and watching new movies and different movies. Okay, great. But then I've seen that you have joined back work. आपने काफी वापस से like serials के भी कुछ आपने episodes किए हैं, कुछ serial के like there's one serial which is very popular, Tarak Mehta. Then there's another one which is Choti Sardarni. I think आपने वापस से किया है. हाँ, छोटी सरदारनी किया. Then I did बेपनाह, जीजी माँ. Then I did Ishq Subhan Allah, which was very strong role. After lockdown या lockdown से पहले का है ये? नहीं, लॉकडाउन से पहले का है. लॉकडाउन के बाद तो अभी मैंने नागिन किया. Then I did one web series, and then संतोषी माँ. बस थोड़ा ही काम किया, मतलब ज्यादा नहीं किया. Now लॉकडाउन के बाद you have to be careful, you have to be very taking safety precautions and all. I want to know that आपने इस lockdown में what are the new things that you tried, or what is the old thing that you revived? क्या ऐसा कुछ आपने नया किया इस lockdown में जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था आपको? क्या नई चीजें की आपने लॉकडाउन में? देखिए, सबसे पहले तो सारा वक्त आप अपने ऊपर ही देते हैं जी. हमने आराम बहुत किया. आराम. Loads of rest, and everybody did that. Yeah. Second thing is we got in touch with a lot of people. अभी क्या हो कि लॉकडाउन में जो पुराने रिश्तों को रिवाइव किया. Very nice. शायद सबने किया होगा. पुरानी पिक्चर्स, पुरानी फोटोग्राफ्स, पुरानी गैलरी और पुरानी यादें. हाँ, पुरानी यादों को कुरेदा हमने. और जिससे कभी बात नहीं करते थे उससे भी बात हो गई, कभी याद भी नहीं किया उनको भी याद कर लिया. एक तो ये बहुत अच्छा हुआ लॉकडाउन से, और शायद मैंने नहीं, सबने ऐसा किया. सबने किया, राइट. बहुत सारे लोग शेफ भी बने. आप नहीं बने, आपने कुछ नहीं बनाया नई चीज. बहुत लोगों ने केक बनाया, नहीं. I'm from a hotel. Okay, yeah, that's what I asked. And I cook good food. I mean, मैं अकेला. Okay, I stay alone in Mumbai. My family is in Bengaluru. और कुछ दिल्ली में भी है. तो मैंने
I enjoy cooking यार, मैं I love cooking, so I really explored some good cooking. और क्या किया हमने, एक्सरसाइज तो करने का मौका ही नहीं मिला, वो खाते से सोते थे, खाते से सोते थे. Okay. And हाँ, you become lazy. Yeah. एक तो ये है, Right. you know, you Yeah. become really lazy in life when you have nothing else Yeah, to do. but then basically you spend time with yourself, you spend with your loved one also, like through this technology, as we say, like right now also we are talking and we can see each other. ये टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और काफी अच्छी चीजें, लाइक एटलीस्ट जो पहले एक होता था ना कि जो एक मिलने का नहीं भी हो तो एटलीस्ट इससे ही मन भर जाता है कुछ हद तक, कुछ टाइम तक, लाइक वी कैन बी श्योर दैट एवरीबडी इज सेफ एंड साउंड. सो दैट्स वन थिंग. तो बहुत ऑल आई कैन से इज दैट बहुत सब लोगों ने कई चीजें कॉमन की हैं, जैसे खाने का है. बहुत लोगों से मैं बात कर रही हूँ, बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि हमने खाना बनाना सीखा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू नीड टू नो how to cook food for your survival. That's the best part, that irrespective of your gender you should know that. और आपने रिवाइव किए अपने पुराने रिश्तों को, ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डाउन द लाइन मिस हो जाता है, बिकॉज यू आर बिजी इन योर ओन वर्क. तो अभी जब आप वापस गए लॉकडाउन के बाद फॉर योर शूट्स एंड ऑल, तो उस टाइम पे क्या एक अलग चीज लग रही थी आपको? क्या लग रहा था कि ओ यार ये तो काफी बदल गया है, ऑब्वियसली ऑल दो सैनिटाइजेशन प्रोसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, कैसा फील हो रहा था? लॉकडाउन के बाद हाँ, डेफिनेटली अजीब लग रहा था. लोगों से दूरियां बना के मिल रहे थे. वी कैन नॉट शेक हैंड्स. You they do thermo temperature pulse measurement. आपका then the temperature, मास्क ला के रहना, और अपनी वैनिटी में रहना, किसी और की वैनिटी में जा नहीं सकते मिलने के लिए, जस्ट यू आर देयर. तो मिलना जुलना भी नहीं होता. हाँ, तो अगर मिले भी तो हाँ भाई क्या हाल है, दूर से ही हेलो हेलो, ओके. लेकिन हाँ, सेट में जाने के बाद क्या होता है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक द मास्क आउट, बिकॉज आप शूट तो मास्क में नहीं कर सकते ना. हाँ. तो एक्सेप्ट दैन एक्टर्स, एवरीबडी वाज वेयरिंग मास्क. एक्टर्स को क्या है कि देन अगर ज्यादा मास्क पहनो तो वो लाइन आ जाती है, जैसे कि सर लाइन आ जाएगा फिर फेस में ना, वो भी. तो इस तरह से हमने अपने आप को, डिफरेंस तो था, लेकिन आस्ते आस्ते हाँ, अब थोड़ा थोड़ा तो डर भी हटता है. अब तो मैं तो डरता नहीं हूँ, बाकी जो दहशत शुरू में तो वो तो थी, अब नहीं, अब डर. अब थोड़ा एक इट्स लाइक यूज टू हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आ गया है, समझ आ गया है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है. तो कमल जी ये बताइए, लाइक वी नो दैट यू, एज यू ऑलरेडी सेड कि आप एक होटेलियर थे, योर जर्नी स्टार्टेड एज अ होटेलियर. सो फ्रॉम होटेलियर टू एन एक्टर, बहुत ही अलग लाइन है, दोनों बहुत डिफरेंट है, बट आई एम श्योर दैट ये आपके एक पैशन होगा कहीं ना कहीं, और बचपन से आपने कहीं देखा हो. तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से कैसे आया, कैसे आपकी लाइफ में एक चेंज आया, वी नीड टू नो दैट. हाँ, वो स्कूल, जब हम आर्मी स्कूल में थे, आई वाज इन किंग अजमेर मिलिट्री स्कूल. तो आर्मी स्कूल में थे, तो जैसे कि मैं मतलब मेरे सारे दोस्त लोग आर्मी में ही हैं. वी वर बचपन से 10 साल के थे, हमको लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सैल्यूट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर. तो मैं थोड़ा सा नॉटी टाइप का था, तो थोड़ा हटके था, तो दिल नहीं करता था यार पढ़ाई करने का. तो एक्चुअली में जाने का दिल था आर्मी में, लेकिन पढ़ाई करने का दिल नहीं था. तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि देन फिर मैंने पढ़ाई कम की. मैंने एनडीए भी दिया, 7-6 चांस थे, 5 बार दिया था. 6th टाइम डैडी ने बोला मत जा, तेरा नहीं है. Then I joined somehow, but when I was in school, हम लोग हॉस्टल में थे. We were 300 students, so and I used to do a lot of theaters. वहाँ पे play, theaters, English, Hindi करते थे, and all the cultural activities I was in charge. So ultimately, I mean, it was there in my mind, and लेकिन क्या है कि वो फिर वो होटल में मजबूरी से जाना पड़ा. वो भी एक कहानी है लंबी. So वहाँ से कैसे, लाइक फर्स्ट ऑफर जो आपको मिला, लाइक उस इंडस्ट्री, वो कैसे हुआ? फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपको मिला. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट, देखिए मैं होटल जीएम, सो जनरल मैनेजर इन द होटल इन बैंगलोर. एंड ऐसे somebody, one of my friend in Facebook, he says, sir आप एक्टर हो. I used to put a lot of photographs, so if you see my FB, it's full of photographs. Yeah.
ऐसे सर आप एक्टर हो, ऐसा दिया. So this guy came, he said sir कोई कन्नड़ा मूवी, I was in Bangalore, he said कन्नड़ा मूवी होगा तो मैं आपको लेके आएगा, we are working on something. So after 3, 4, 5 months, all of a sudden he called me one day in Mumbai, Bangalore. He said sir I'm here. I'm talking about कन्नड़ा movie, how I got the break. हिंदी की भी अलग story है, हिंदी में कैसा हुआ मेरा entry. So he came to my hotel, he came with wife and all. मैंने complimentary उनको dinner कराया, तो उसको बेचारे को एक सर ने इतना ख्याल रखा तो एहसान हो गया. Then उसने कहा sir I will bring my producer, director and there is a movie which we are making. I said okay. So yes sir, 11 o'clock in the morning. So 11 I was waiting. I said आया नहीं पता नहीं. Then they came in the night at 8 o'clock. So he says sir I have this character and this character and teacher का role है, but he is very important character, main lead है. So I did that and उनको बहुत पसंद आया. Sir चुम्बा they say in Kannada. So मतलब we really loved it and you are the one who was doing. So उनको भी dinner कराया मैंने complimentary. Wow. So I didn't bribe them, but it was like, so they were all happy and then we shot and this movie came out to be awesome and I have already 50 million views of the song only. 50 lakh views मेरे गाने के. That is Kannada movie. Me and that small boy. There is a small boy. That is really amazing कि किसी ने आपको फेसबुक में अप्रोच किया, बोला आप एक्टर हो, बोला आपने बोला हाँ, and then you know that's destiny. Amazing. नहीं तो कितने like you know बहुत से लोग जाते हैं ऑडिशन के धक्के खाते हैं, खड़े होते हैं, वापस आते हैं, ये सालों साल चलता रहता है, तब भी उनको एक मूवी तो बहुत दूर की बात है, कोई कैरेक्टर नहीं मिलता. Yeah. मेरे पास आए, they came to me. I didn't go anywhere. Yeah, that's what I'm saying. अच्छा. Yeah. हाँ, अच्छा बॉलीवुड की सुनाता हूँ. Bollywood, how I got my made movie. Sure. Was Deepak Shivdasani. He did. He's already did 14 movies with Salman के साथ, बागी वगैरह, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, रेखा, सभी. He has made 14 movies, and he was supposed to. He was making Julie too, and then he was. One friend of mine, she says, Kamal, come with me. This guy is coming, Deepak Shivdasani. He wants to shoot in Bangalore. So can you come with me to the airport? I said, okay, चलते हैं. I went to airport. वो आया, hi, this is Kamal, hi. उसने कहा यार बहुत भूख लगी है. He had something in the subway में उसने खाया. He had burger, सब खा के बाद उसने ऐसे पेपर फेंका and it turned it back. He said, you are working in my movie. In the airport. करेगा? मैंने कहा हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? So I said, okay. He says, you are shooting and then we'll send. So no audition, no screen test, nothing. And next thing I know, I got an air ticket. Sir, you are flying to Hyderabad. Then they changed the venue to Hyderabad instead of Bangalore because Bangalore traffic में थोड़ा सा time लग रहा था. Then they said, okay, Hyderabad. Then we shot with Pankaj Tripathi and Aditya Srivastava. He only came to meet you and select you for the he only came to Bangalore. Yeah, it was like just. होता है ना किस्मत की यार, वो एयरपोर्ट में मिल गया, उसने कहा कमल यू आर वर्किंग माय मूवी, ठक खत्म. एंड देन ही कॉल्ड द मुंबई, दिस इज कमल इज डूइंग दिस सर वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड समबडी. ही सेड नो कमल इज डूइंग दिस. तो मैं सिंगल सेट पे पहुंचे. सो दैट्स हाउ इट इज. दिस इज व्हाट वी कॉल लक, खतरनाक. ओके. So you got a Bollywood movie, you got Kannada movie, all these things you're doing sequels also, and because so how is this phase that you're enjoying, कैसा लग रहा है? Like obviously you were the general manager of your hotels, been with major hotels in India, so अब कैसा feel हो रहा है? एक अलग एक स्टार वाली फीलिंग आ रही है, like after doing all these movies? नहीं, स्टार तो नहीं बना अभी मैं, long way to go. अभी मुझे 2-2.5 साल हुए हैं, बट I was the general manager होता है ऐसा राजा की तरह, like king and ये इसको डांटा, इसको काटा है, come here, उधर गाली दिया, इधर किया, इसको ये किया, डांट वाट. यहाँ पे है कि भाई खुद डांट सुनो. कई बार अच्छा करने के डायरेक्टर भी डांटेगा and you have to go for audition. But this was a passion. I always say you should do P, passion, practice, patience, and performance and persistence. The 5 P's there one should always adhere to. First of all, you have to have a passion for it. Once you have the passion, then nothing stands in between. Even this, when I was struggling, अभी तो खैर, but I was very lucky कि मुझे मुंबई आते 21 दिन से काम मिलना शुरू हुआ. क्या बात है. लोगों को सालों साल 3 साल लग जाते हैं. अभी भी मेरे को there's no count. लोग मिलते हैं, सर आप मेरे को 3 साल हो गए कैमरा नहीं देखा मैंने, क्या बात कर रहा है.
मैंने कहा क्या बात है यार। तो मैंने कहा हाँ, कभी ऐसा हुआ था तो कि मैंने बचपन तो में कभी कुंडली दिखाई हो तो किसी पंडित जी ने बोला हो कि तुम एक्टर बनोगे, तो और आप सोचा रहे क्या बोल रहे हैं, मैं तो कहाँ हूँ और अभी क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अरे मैडम 38 साल बाद मैंने वेट किया, 38 साल पेशेंस, दैट्स व्हाट आई सेड, पी वन पी इज पेशेंस। मैं तो चाहता था 1979 80 में आना बम्बई। बट इट इज लाइक यू नेवर गेव अप, आपने अपने उस ड्रीम को कभी छोड़ा नहीं, अंदर ही रखा, बट रखा जरूर, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी, आशा थी आपको कि ऐसा होगा। और आशाएं जिसे बोलते हैं बरकरार रहनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, कि आपने वो चीज रखी और आपके साथ ऐसा हुआ। अमेजिंग। सो आप अभी तो आपके, आई एम श्योर जैसे आपने बोला कि अभी बिकॉज लॉकडाउन है तो थोड़ा सा इसमें चल रहा है, सो लेट्स टॉक अबाउट, आपने बीच में एक बार बोला था दैट यू आर अ वेरी नॉटी किड। सो व्हाट वी वांट टू नो इज दैट व्हाट इज द नॉटीएस्ट थिंग दैट यू डिड, एंड क्या आपने ऐसा कुछ किया था जो आज भी आपको याद है, और आज भी आप कहीं ना कहीं उसको जब सोचते हैं तो आपको लगता है बाप रे ये क्या किया था मैंने, द मिस्चीव्स दैट यू डिड इन योर लाइफ। मैं बहुत नोटिस था बचपन से ही, मतलब मैं तो आई वाज द रिंग मास्टर, रिंग मास्टर। मेरे चाचा मेरे को कहते हैं रिंग, आई हैड इतने सारे बच्चे मेरे अंडर थे, 20-25 मोहल्ले के ना, आई वाज द बॉस। तो लेकिन बचपन में, मैं उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं बहुत ही क्यूट था, 4 साल का होऊंगा। सो माय ब्रदर वाज जस्ट बोर्न, वो शायद 2-3 महीने का होगा। मच्छर तो बाहर, पहले उस जमाने में हम लोग मच्छरदानी में बाहर बच्चे को सुलाया हुआ था, और वो सो रहा था अंदर मच्छरदानी, एंड आई वाज देयर वाज अंगीठी, 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 आई डोंट नो अंगीठी क्या, जी मिलने वाली अंगीठी था, तो सिकड़ी टाइप ना। तो मैंने अपने, हाँ, तो आप, ही वाज स्लीपिंग, और मैंने वो तो, झाड़ू की तिल्ली ली, उसमें उसको जलाया, पता नहीं मेरे, और मैंने मच्छरदानी को आग लगा दी। तो आपने क्या एंड ऐसे खड़ा हो गया, देखने लगा उसको जलते हुए। प्रोसेस कुछ याद है 3 साल के बच्चे को? आई डोंट थिंक I don't know, मेरे को अभी तो याद नहीं है मेरे को, आई डोंट रिमेम्बर। तो when I did this and my नानी जी was taking bath, मदर फादर नहीं थे, they must have gone somewhere. वो she came running, बच्चा अब चारों तरफ आग लग गया है ना मॉस्किटो नेट में, अब छोटा सा बच्चा अंदर है। she came running, she barged in, उनके बाल खुले हुए थे, सारे जल गए। she grabbed the guy and he got burned, पूरा जल गया इधर उधर ना बेचारे को। अभी तो ठीक है। एंड सबने मेरे को, मैं भी छोटा सा, किसने किया ये? मैं चुपचाप से, मतलब किसने किया, मैं ऐसा मुझे वो याद है, और बाकी तो बदमाशियां तो मैंने बहुत की। सो उसके अलावा, सो आई जस्ट होप कि वो जो बर्न्स थे अब बिल्कुल अब नजर तो नहीं आते ना आपके भाई की, कहीं कहीं ना बोला ये तूने लिखवाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, यहाँ पे था, तो ही बिकेम ओके, एंड बाद में ठीक हो गया था कुछ सालों, मतलब कुछ महीनों बाद, सालों बाद। बट इट वाज हॉरिबल फॉर ऑफ मी, मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं था, नहीं बच्चा था तो। तो उसके अलावा कुछ और आपको याद आ रहा है इसके लिए? ये तो बहुत खतरनाक था, मतलब इससे कोई कम खतरनाक याद आ रहा है आपको? नहीं, जैसे ना हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना वो, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग बैट बनाने के पैसे, अब कहाँ से लाए बैट बनाना? तो बैट तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करता था बच्चों को ना, बैट बनाना, ग्राउंड बनाएंगे, अब कैसे क्रिकेट खेल। अब उस जमाने पैसे भी नहीं थे, वो तो टायर को मार मार के हम लोग टायर वो करते थे, या गुल्ली डंडा खेल लिया, या कंचे खेल लिए। अब क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है, अब हमने कहा भाई लकड़ी चाहिए हमको, लकड़ी ना, बैट फट्टे वाला बैट, वो फट लकड़ी। तो वो ना वहां पे ना कुछ मजदूरों के घर हुआ करते थे, जो ना मजदूरों घर, तो उनके घर में ना वो लोग काम पे जाते थे ताला लाके, तो उनके घर की ना जो चौखट होती है ना, वो जो देयर वाज यूज्ड टू बी फट्टा, दरवाजा बनता है ना, वो बेचारे का ईंट लगा के, कच्चे ईंट और दीवार की, तो वहां एक फट्टा होता है, तो हम लोग वो फट्टा निकाल लेते थे। और उसको खुकरी होती थी, खुकरी ना, काट काट के बेचारे को, काट काट के बैट बनाते थे। अब वो बेचारा ढूंढ रहा होगा कौन उठा के ले गया हमारा, तो चौखट उखाड़ लेते थे। नाइफ जो सिकल जैसी एक होती है, खुकरी, जो नेपाली समथिंग हाँ, नेपाली खुकरी होती है, हाँ। वो एक हमारे दादाजी की थी, वो पुराने जमाने की ना, उसका वो जब हैंडल भी नहीं था, उसमें तो कपड़ा बांध के ना, ठाक ठाक मार के हम उसको कैसे ना कैसे बैट का शेप देते थे। अच्छा, बॉल क्या थी? बॉल नहीं थी, तो किसी के साइकिल का टायर निकाल लिया, टायर, तो टायर का ऐसे गोल गोल काट के, एक कपड़ा, एक पेपर लिया, उसको स्क्वायर, एक के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ाते, देन इतना चढ़ने का इट बिकम बॉल। तो वो हमारे पैसे नहीं थे खरीदने के बैट ना बॉल, तो इस तरह से ग्रेट, ऑल दीज मेमोरीज निकाला, किसी ने साइकिल की ट्यूब निकाल ली। जी, तो कुछ ना कुछ मतलब खुराफाती दिमाग तो ऑब्वियसली चलता ही रहता था।
और आई वाज द बॉस, मैं तो रिंग लीडर था, रिंग लीडर। ये करो बच्चे को, ये करो, ये करो, ये उठाओ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एन आर्टिस्ट आल्सो, यू नो आप बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, एंड यू नो यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ पेंटर आल्सो, लाइक यू नो योर डैड आल्सो वांटेड यू टू बी अ पेंटर। तो आपकी जो वो आर्ट वाली, यू नो यू आर वेरी गुड एट कैलीग्राफी, सो वो जो आर्ट वाला है वो कब आया आपके पास, यू नो दैट थिंग दैट आर्ट वाला भी देखो, मेरी जिंदगी के ना सारे सपने अधूरे ही रहे। हम लोग मतलब, हाँ मतलब ऐसे ही रहा कि यार जबरदस्ती करनी पड़ी आर्ट, मतलब शौक था, सब कुछ था, टेक्निक, पैसे नहीं थे। ओनली थिंग उस जमाने में था कि पैसे नहीं थे भैया। कॉलेज के लिए भी पापा ने बोला भैया तू अपने आप अर्न एंड लर्न ऑफ योर ओन, अपने आप कमाओ, अपने आप पढ़ाई करो। 12th के बाद मैं बात कर रहा हूँ। कॉलेज भी मैंने फिर गिरते पड़ते डीयू का कॉरेस्पॉन्डेंट, अभी भी कुछ पेपर बाकी है अभी भी। ओके डीयू के कॉरेस्पॉन्डेंट थे ना, अभी मेरे 2-4 पेपर बाकी है अभी, हिस्ट्री के और एक हिंदी में बाकी है। ओके तो पेंटिंग करता था मैं, आई यूज्ड टू डू पेंटिंग। अब आई यूज्ड टू शंकर आर्ट होता है ऑल इंडिया बेसिस में, मैंने भाग लिया बचपन में, जिस दिल्ली में आईटीओ पे है उनका ना, तो मैंने बहुत जगह पार्ट लिया, और 1-2 जगह कहीं जीता भी। और शौक था बस, डैड वांट मी टू लर्न, यू नो ये सब करने का दिल करता था, लेकिन अब बेचारे वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल था उस जमाने में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। But what I can say is that, you know, it's never too late to learn something, or never too late, you know, to revive something. You know, whenever you want to, you can do that. You know, for sure. तो ये तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके अलावा दैट यू नो व्हाट वी हैव गॉट टू नो इज दैट यू नो आपके अंदर कुछ मिमिक्री का भी है, और यू नो आप गाते भी अच्छा हैं। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू प्रोबब्ली जस्ट हिम अ फ्यू लाइंस। मिमिक्री तो मैं करता नहीं हूँ, मैंने 1-2 या एक्टर से कर, बाकी मेरे मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ। बट ये गाने का जो शौक था, जैसे हम, अच्छा मैं अनयूजुअल एक्टर्स को, अनयूजुअल सिंगर्स को गाता, जैसे किशोर दा और मोहम्मद रफी को सब गाते हैं। अब हाँ, जैसे गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल ले चल, ये हमारे जसबीर क्या था वो सिंगर, मैं तो नहीं भूल गया। फिर भप्पी लहरी का ना, भप्पी लहरी का यू गैन मास्टर जी ना, हम भप्पी लहरी का ही मुझे पसंद आता था। शैलेंद्र सिंह था जो मैं शायर, बाद में उन्होंने गाने गाए है ना। हाँ, तो उनका भी जैसे उनकी आवाज अलग सी थी थोड़ी सी, वो मैं शायर, इट वाज सुपर हिट, एंड बॉबी के सारे गाने गाए, एंड उनकी आवाज थी, लेकिन बट ही डिडंट, he was not, he didn't become that famous who like किशोर दा। हाँ हाँ हाँ, तो उसको शैलेंद्र सिंह का भी अक्सर मेरा मन कहता है चुप कर कोई आता है, लाइक दिस नो। उसकी आवाज थोड़ी सी उनकी वो है बेसिकली, हाँ थोड़ी तरह थोड़े से अतरंगी सिंगर्स थे, आप उनको कॉपी करने में मजा करते हैं, बिकॉज कुछ अलग होना चाहिए, यू नो वहां पे भी कुछ अलग। बप्पी लहरी जी से था, जैसे मिथुन जी के लिए गाते थे, तो हम उस टाइम तराना, सुरक्षा, वारदात, ये मूवी, तो हम भी जवान हो रहे थे। और रंजीता जी के फैन थे हम। रंजीता जी, हाय रंजीता, लैला मजनू, एंड उस टाइम सचिन के साथ वो आई थी अखियों के झरोकों से, तो रंजीता वाज डूइंग गुड, सो उनके साथ हम लोग काफी, रंजीता जी के साथ हमारा रहा तो अटैचमेंट था, बट आई एम इन टच विथ हर। रंजीता जी को ना पैशन था ना, so I spoke to her, she is in वर्जीनिया में है मैडम, एंड एक काफी बार बात हुई मेरी, she became good friend. Great, amazing. So कमल जी ये बताइए, आपकी आने वाली अब जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए, where we all can see you, you know, in future. Hello Sumit, hello everybody who has joined this chat, hello, yeah. हाँ, मेरी ना अभी there are one movie I'm doing with स्नेह उल्लाल the लकी हीरोइन जो ऐश्वर्या राय, उसके साथ मैं फादर हूँ एंड डॉटर, एंड वी हैव सम स्टिफ्स एंड ऑल। देयर इज अ वेब सीरीज व्हिच इज कमिंग ऑन, आई थिंक इट इज कमिंग ऑन सम फिल्मी स्टेशन, एंड दैट स्टेशन इज गोइंग टू लॉन्च इन 7th or 8th सितंबर को लॉन्च हो रहा, तो उसमें सो यू विल सी मी क्वाइट, उसका मार्केटिंग होगा। दैट इज वन। देन देयर इज अ वन मोर मूवी कॉल्ड Reporter Robin Hood, that is ready and supposed to be released. I've done a father's role of the hero, and काफी आगरा में शूट किया। मैं मिडिल क्लास फैमिली का टीचर हूँ, और अच्छा ही किया मैंने सीन। I saw my
तो मुझे अच्छा लगा कि आई हाँ, एक्टेड okay. एंड देन आई एम डूइंग फिर एक और मूवी है हाँ हमने अभी चले चलो विच इज अर्जुन कपूर एंड रकुल प्रीत एंड Okay. आई थिंक जॉन इब्राहिम आल्सो देयर there's a song which is very peppy song and I'm the father of the son who is getting married Okay. थोड़ा कराची का सीन है Okay. फिल्म सिटी वी यू नो एंड बहुत मजा आया यू नो वी एंड इट वाज लाइक पेपी नंबर once everything becomes normal after there's Right. so it will be in disco and you know gym वगैरह Right. everything will be normal Right. at certain point of Right. time definitely Yeah. तो ये था and one is movie coming why is a big movie which I'm waiting for Yeah. it is in two languages Kannada and Hindi we have registered it in Hindi Bollywood movie Okay. and Akshay Kumar saw our trailer Akshay Kumar ने trailer देखा और उन्होंने कहा I will release the trailer you know Wow. he really liked it हाँ so I'm doing I have 20 scenes 20 scene है मेरे interval के बाद full movie I'm I've so I will not talk much about that because it is beautifully done from South directors Yeah. and उन्होंने किया है and बहुत अच्छी बनाई है we have done it two language we have dubbed we have shot everything is two languages Right. so hopefully that comes out to be very nice Right. and I'm keeping a finger crossed that after that I should not I should be a busy actor in at least Kannada में South. Yeah, definitely. You know, people are saying that there's Narendra who's saying that तुमसे कुछ आशा है, आशा रखिए, हमेशा रखिए. हमें भी कमल जी से बहुत आशाएं हैं. आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी मूवीज करने वाले हैं ये. और we hope that you know जितनी भी आपने मूवीज बताई हैं, they should become super hits. So that we can see you more and more, you know, apart from that, all the regional ones, we can see you more and more in Bollywood. And so, Kamalji, one message that you want to give, you know, the upcoming artists or, you know, actors, you जितने भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, you know, they don't know basically the way सही जो राह है क्या है. अगर कुछ एक आप बताना चाहें उनको या कुछ अपनी जर्नी से, you know, कुछ आप उनको सीख देना चाहें तो वो क्या होगा? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट Yeah. आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना ही पड़ेगा आप वो यू कैन नॉट गो कॉपी बुक बेवकूफ बन के नहीं जाने का आपको यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट आपको ये देखना है कहाँ आपका जुगाड़ होगा कहाँ पे सेटिंग होगी कहाँ पे कौन से प्रोडक्शन हाउसेज है वन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड नॉट गो टू द बिग मैंने जो गलती की शुड नॉट गो टू द बिग प्रोडक्शन हाउस शुरू अनलेस एंड यू हैव डन सम गुड एक्टिंग यू आर सुपर एक्टर और अब आप देन यू शुड गो टू द बिग प्रोडक्शन हाउस बिग कास्टिंग डायरेक्टर पहले तो अपने आप को दो चार छोटे काम करो एंड गेट फियर ऑफ फेसिंग द कैमरा कैमरा का डर हटाओ सबसे पहले ना सेकंड थिंग प्रैक्टिस करो आवाज की अपने शब्दों की अपने डिक्शन की और फिल्म्स देखो आई मीन ऐसे जाते ही घुसो मत फर्स्ट मेक श्योर यू प्रिपेयर योर अपने आप को तैयार करो once you are ready and you think, yes you are ready you know take comments from your friends take comments from you know some good trainers and all अच्छे trainers learn from them you know उनके साथ थोड़ा सा जाके अगर थोड़ा if somebody is totally new आके बस ऐसे धक्के मत खाओ go and learn from some learn करके then you go and meet the casting directors you meet the production house वहाँ जाके and हर एक से मिलते रहो and most important is apart from being actor your behavior be a good person आप अच्छे इंसान हो गए दोस्तों लोगों से अच्छे से मिलोगे you will not show tantrum अपना behavior नहीं दिखाओगे तो then definitely people will love to work with you or be the producer person be nice to everybody and बस that is in every field यार आप अच्छे अगर होटल में भी हो डॉक्टर भी हो लॉयर भी हो कुछ भी हो So you have to be a good human and be nice. If you are a good human, कहीं ना कहीं तो it helps you, you know, it helps you all the way, you know, जैसे मैडम दो चीज हेल्प करती है या तो पैसा या जान पहचान अगर आप अच्छे हो आप जानते हो लोगों को अच्छा है आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपको यार इसको काम दो बड़े बड़े एक्टर्स को अदर डे आई वाज वाचिंग सलीम जावेद जी का सलीम खान जी का अमिताभ बच्चन उन्होंने जंजीर में काम दिया बिकॉज उन्होंने रेकमेंड किया एंड दे सेड So it was just the behavior of the person. Right. This is very important. Right, definitely. Okay, so you know, thank you so much, कमल जी. आप हमारे इस शो में आए, you know, लाइव आके आपने अपनी लाइफ के बारे में, you know, especially you know,
what from your journey, what we can learn is, never lose hope. कभी भी मैं बार बार ये बोलूंगी, कभी भी आशाएं मत छोड़िए और लगे रहिए till the time you reach there, you reach your goal. अभी भी आपके अंदर जितने भी हुनर हैं, you are an artist, you can always continue that because there is no age for anything. कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर वो ड्रीम सर्वाइव कर रहा है तो वो ड्रीम आप अचीव कर सकते हैं, उसको मरने मत दीजिए. एंड दैट्स ऑल वी कैन लर्न फ्रॉम यू. ऑल दिस while you were doing something else and then you landed up here because you wanted to be. And madam, second innings. So we hope our second inning first se bahut behtareen ho. That's what we hope for. And thank you once again for coming live and sharing all these thoughts. That's all we have to say. And best of luck for all your projects. Hope it will be super success. Thank you very much, everybody. Respect, enjoy yourself, God bless. And nothing is impossible. Yeah, nothing is impossible. So keep hoping and keep doing hard work. Yeah. One thing I'll say, apart from everything, just take care of your health. Yeah, that's also very important. Yes. If you're healthy, then you can do anything. Yes. Health is wealth. Health is wealth. Health karoge wealth. Wealth, health. If you take care of your health and you work hard, तो तभी तो कर सकते हो when you are healthy. Yeah, very true. And smile. Yeah. Keep your face smiling. Yes. Be healthy. So if you're healthy, just spend 1 hour 45 minutes for your health every day. Surely. Yeah, we all should do that. We should always be healthy. जैसे आपने बोला, कहीं ना कहीं fitness is very important in the long run. So it definitely helps. So with all these thoughts and with all these wishes, we just say bye bye to you and have a great day ahead. Bye bye. Shukriya. Thank you. Namaste. Thank you. Bye. Bye.